ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 3 ઓગસ્ટ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। બાબાને યાદ લેવી છે, બાબા આપણને યાદ કરે તો એના માટે શું કરવાનું છે? સર્વિસેબલ બનો. બાબા કહે છે જ્ઞાન આટલા વર્ષોથી લઈ રહ્યા છો, બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન ભરેલું છે એ જ્ઞાનની વર્ષા કરતા રહો. વર્ષા કરવીમાં અન્ય આત્માઓ સુધી એ જ્ઞાનને પહોંચાડવાની સેવા કરો. प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता? બાબા કહે છે જ્ઞાનથી તમારી બુદ્ધિ ભરેલી હશે, પરંતુ તમારી અંદર એવો કયો નશો છે કે જે તમારા જ્ઞાનને બી કામ કરવા નથી દેતો, જ્ઞાનને વરસવા નથી દેતો, અન્ય આત્માઓને તમે જ્ઞાન નથી આપી શકતા. એનું કારણ શું છે? એ કયો એવો નશો છે કે આપણી બુદ્ધિનું જ્ઞાન પણ ઉડાવી દે છે? उत्तर, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे. બાબા કહે છે ફાલતુમાં અગર દેહ અભિમાનનો નશો આવ્યો તો શું થશે? જે બુદ્ધિમાં જ્ઞાન ભરાયેલું છે એ બધું જ્ઞાન ઉડી જશે. બરસેંગે ભી તો સર્વિસ કે બદલે ડિસસર્વિસ કરેંગે. કારણ કે દેહ અભિમાનમાં આવીને આપણે બીજાને જ્ઞાન બી આપીશું તો એ જ્ઞાન આપણા માટે સેવાદાયી નહીં હોય, परंतु डिससर्विस करसे. अगर बाप से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है. अगर बाबा साथे प्यार नहीं, बाबाने योग नहीं करता तो जाने ज्ञान भरेલું છે બુદ્ધિમાં ઘણું બધું, પરંતુ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ બુદ્ધિ ખાલી છે એના બરાબર થઈ જાય છે. તો ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कर सके. कैसे करेंगे? બાબા કહે છે ભલે ભરેલું છે પરંતુ બાબા સાથે પ્યાર નથી, યોગ નથી, તો ભરેલું હોવા છતાં બી જેવી રીતે ખાલી છે. તો બાબા કહે છે કે આવા ખાલી બાદલ અનેકોનું કલ્યાણ કઈ રીતે કરી શકશે? તો ખરાબમાં ખરાબ નશો કયો છે? દેહ અભિમાન. કે જે દેહ અભિમાન આપણી બુદ્ધિમાં અનેક ઘણું જ્ઞાન ભરેલું છે એ જ્ઞાનને બી एकदम उड़ाड़ी दे छे. ओम शांति. बाकी थोड़े बादल बचे हैं. जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं. જેવી રીતે વરસાદ શરૂ થાય તો શું થાય? વરસાદ ધીમે 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 ઓછી થાય તો ઉપર આકાશમાં વાદળો બી ઓછા થઈ જાય, કારણ કે પહેલાં ભરેલા હોય પછી એ વરસી જાય તો એ બાદલો બી ઓછા થઈ જાય છે, ઠંડા થઈ જાય છે. તો અહીંયા બી બાબા કહે છે એ રીતે છે. બાદલ ઉनको કહેંગે જો રિફ્રેશ હો જાકર વર્ષા કરતે હૈ. બાદલે કે ભલે બીજે જઈને ખાલી થઈ આવ્યા, પાછા આવીને સાગર પાસેથી ભરી જાય, પાછા બીજે જઈને ખાલી થઈ આવે, તો બાબા કહે છે તમારે તો એ સેવા કરવાની છે. બાબા પાસે આવો, જ્ઞાનથી ભરપૂર બનો, રિફ્રેશ થઈ જાઓ અને અન્ય આત્માઓ પાસે જાઓ અને ત્યાં વર્ષા કરી આવો. એ આત્માઓને જ્ઞાન, સુખ, શાંતિ, આનંદની અનુભૂતિ કરાવી આવો. તો એ છે સાચા બાદલ. यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल. ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है. બાબાના અવતરણની સિઝન હોય છે ત્યારે જ્ઞાન બાદલમાંના બાબાના બાળકો, જે બાબા જ્ઞાનના સાગર છે તો જ્ઞાન સાગર પાસે આવે છે ભરવા માટે. रिफ्रेश हो जाकर औरों को भी रिफ्रेश करते हैं. तो ज्ञान सागर પાસે જ્ઞાનથી ભરપૂર થાય છે અને પછી બીજે જઈને એ જ્ઞાન અન્ય આત્માઓ સુધી પહોંચાડે છે. તો બાદલ भी नंबरवार होते हैं. कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं. बादलों का काम ही है बरसना
और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। વાદળનું કામ શું હોય? સાગર પાસેથી પાણી ભરી જવું અને એ પાણી એવી જગ્યાએ વરસાવવું કે જ્યાં છોડ, વૃક્ષો, પૌધા જે મુરઝાઈ ગયા છે એને ફરીથી રિફ્રેશ કરી દેવા. તો બાબા કહે છે તમે બી કોણ છો? તમે જ્ઞાન બાદલ છો. તમારે આવવાનું છે મારી પાસે, જ્ઞાન સાગર પાસે, અને ત્યાંથી જ્ઞાનનો ખજાનો ભરીને જવાનું છે. અને જે અશાંત, દુઃખી, જે મુરઝાયેલી આત્માઓ છે, ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં આવી ગયેલી, તો એવી આત્માઓને જ્ઞાન દ્વારા रिफ्रेश करवाना है. जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ही बादल. બાબા કહે છે જેની અંદર જ્ઞાન ભરેલું હોય ને એ ક્યારે બાબાની સૂચનાની બી ના રાહ જુએ, એ ફરજતા જ રહેતા હોય, અન્ય આત્માઓને જ્ઞાન આપતા જ રહેતા હોય છે. आते ही है भरकर बरसने के लिए, जहाँ देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए. હા, બાબા કહે છે ભરીને જ્ઞાન લઈને તો જાઓ છો, પણ જ્યાં જુઓ કે આ આત્મા બહુ દુઃખી છે, અશાંત છે, ટેન્શનમાં છે, ડિપ્રેશનમાં છે, તો એવી આત્માઓની પાસે જઈને જ્ઞાન વર્ષા કરો, એમને રિફ્રેશ કરો. महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं. कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं. तो बाबा કહે છે જે મહારથી બાળકો છે, જે દાદીઓ છે, એ લોકોને ખબર છે કે કયા સેન્ટર કેવી રીતે સેવા કરી રહ્યા છે, કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. तो बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना. बाबा केवा बाळकोने याद प्यार आपे छे? जे सर्विसेबल छे. अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे. प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते. જ્યારે પ્રદર્શની થતી હોય છે તો બાબા કહે છે બધા એક સમાન નથી સમજાવતા હોતા. मुख्य बात ही यह है गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण. मुख्य बात कई समझावानी छे? गीता ज्ञान दाता निराकार परम पिता परमात्मा छे, श्री कृष्ण નથી. તો આ વાતને સિદ્ધ કરવામાં બી બધા અલગ અલગ સમજાવે છે, બધા એક સમાન સમજાવી નથી શકતા. समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए. सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाए. बाबा કહે છે હર રોજ એક વિચાર રાખો કે બધાને જઈને જગાડીએ, બધાને જઈને જ્ઞાન આપીએ, બધાને જગાડવાની સેવા કરો. क्योंकि सब घोर अंधियारे में पड़े हैं. બધા ઘોર અંધકારમાં ફસાયેલા છે તો એની સેવા કરવી પડે. सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है. बाबा શું કહે છે? બધાને પ્રેમથી સમજાવો કે આત્માના પિતા કેટલા છે? બે. એક હદ का और दूसरा बेहद का. કેટલા પિતા છે હરેકના? બે પિતા છે. એક છે હદના પિતા અને બીજા છે બેહદના पिता. बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं. अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है ना. पहला बुद्धि क्या जती रहती હતી, પરંતુ બુદ્ધિ ઉપર અંધકાર ફેલાઈ ગયો હતો. હવે જ્ઞાન મળ્યું તો બુદ્ધિ ઉપર રોશની ફેલાવી છે. તો બાબા કહે છે अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है. दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि. દુનિયાના મનુષ્ય પાસે જ્ઞાન ઘણું બધું છે, ભપકાવાળા છે, જ્ઞાન બતાવશે, શાસ્ત્રોના શ્લોકો તમને સંભળાવશે, બધું જ કરશે, પરંતુ બાબા કહે છે તો પથ્થર બુદ્ધિ. बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे उद्धार करना है. જે સાધુ સંત સન્યાસી છે તો બાબા કહે છે એવા લોકોનું બી મારે ઉદ્ધાર કરવાનો છે. वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं.
सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, કારણ કે આ જ્ઞાન તો નિરાકાર પરમાત્માનું જ્ઞાન છે। આ જ્ઞાન કોઈ શાસ્ત્રોમાં લખેલું નથી। उससे किसी की सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। આજે તમે જુઓ ભગવદ્ ગીતાનું માન કેટલું છે, પરંતુ આખિરમાં તો એ ભક્તિ માર્ગની સામગ્રી છે ને। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। કારણ કે બાબા શું કરવા આવે છે? રાજયોગ શીખવાડે છે। રાજયોગ દ્વારા, રાજયોગ અર્થાત જે યોગ દ્વારા રાજાઈની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો રાજાઈની સ્થાપના તો પરમાત્માને એક બાજુ કરવી પડશે, કારણ કે યોગ શીખવાડે છે રાજાઈ મેળવવા માટે। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा, उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। हाँ, बाबा કહે છે જેને 5000 વર્ષ પહેલા સમજ્યા હતા એ જ ફરીથી સમજવાના છે અને એ જ ફરીથી બીજાને સમજાવશે પણ। यह लड़ाई कोई वह नहीं है। અત્યારે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તો બાબા કહે છે કોઈ બીજું યુદ્ધ નથી। जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएंगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए तो नहीं है। બાબા કહે છે ડ્રામા પ્રમાણે જે બોમ્બ્સ આદિ બન્યા છે, થોડા મૂકી રાખવા માટે બન્યા છે, એનો ઉપયોગ તો થશે ને, तो रखने के लिए तो नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा ही नहीं। पतित आत्माओનું મોત થશે, પતિત દુનિયાનો અંત થશે, ત્યારે તો સતયુગી પાવન दुनिया આવશે। शांति कैसे स्थापन हो, यह भी समझाना पड़े, કારણ કે બાબા કોણ છે? શાંતિદાતા। તો બાબા શાંતિની સ્થાપના કઈ રીતે થઈ રહી છે એ બી સમજાવે છે। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना। बाबा કહે છે શાંતિની સ્થાપના કરવી કે શ્રેષ્ઠાચારી दुनिया बनावी, यह बाप का ही काम है और कोई कर नहीं सकता। तो बाप कहते हैं और संग बुद्धि का तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा શું કહે છે? બુદ્ધિથી ઓર સંગ તોડો, એક સંગ જોડો, બાકી બધા સંગ તોડી દો, એક શિવ બાબાની સાથે સંગ જોડો। देह सहित जो कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। शरीर सहित जे पण જોવામાં આવે છે, આંખો દ્વારા આપણે જોઈએ છે, એ બધું જ તોડવાનું છે। अब हमको वापिस जाना है तो घर को ही याद करना है। बस वापिस तो परमधाम जवानुं छे ने, तो बाबा के जे परमधाम ने याद करो, आ स्थूल दुनिया ने याद करवानी जरूर नहीं। अभी तुम समझते हो यह है मृत्युलोक। कई दुनिया है? मृत्युलोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। देवताओं कोने कहेवाय? कि जे देवी गुणों संपन्न छे, देवी गुणधारी आत्माओं छे, एमने देवताओं कहेवाय छे। यहाँ तो एक भी हो न सके। कलियुग में तो एक पण देवता होई न सके, क्योंकि कलियुग में हरेकनी अंदर कई थोड़ा घणा प्रमाण में आसुरी अवगुण छे। संपूर्ण देवी गुणों वाला तो कोई छे नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है। कृष्ण माटे भी लोग केवी बातों करे छे, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। हाँ, કેટલી કેટલી ગ્લાનિ कर। माखन चोरी करता था, गोपीओना वस्त्र चुरावता हता, हाँ, पोताना मामाने भी मारी नाख्यो, केवी केवी वातो लखी छे। रण छोड़ीने भाग्या हता, रुक्मणीने भगावीने लई गया था,
तो बाबा कहते कृष्ण की भी कितनी ग्लानि कर दी है। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कयो पुरुषार्थ करवानो छे? दैवी गुणों ने धारण करवानो पुरुषार्थ करो। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। तो संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। बाबाए दैवी गुणों भी स्पष्टता करी छे कि दैवी गुणों कोने कहेवाय कि जे हरेकनी आत्मा ने सुख, शांति, संतुष्टता प्रदान करे ए छे दैवी गुणों। तो बाबा कहे छे कि दैवी गुणों धारण करवाना छे अने एना माटे पहला संपूर्ण निर्विकारी बनवानुं छे। यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। हाँ, ज्यां जोईए त्या दुनियामां नियम छे ने, दाखला तरीके कुमारीओ पवित्र होय तो गृहस्थी कुमारीओना पगे पड़े, पण ए ज कुमारी लग्न करी ले, विकारमा प्रवेश करे तो एने बधाना पगे पड़वुं पड़तुं होय। आजे गृहस्थी कोई साधु संत पासे जाए तो साधु संतोना पगे केम पड़ता होय छे? एम के पवित्र छे। तो ज्यां जोईए त्यां पवित्र ने आगळ अपवित्र माथा टेके छे। सतयुग में है ही पवित्र, तो वहां मंदिर होते ही नहीं, कारण के सतयुग में बधा ज पवित्र छे। तो एवुं कोई अपवित्र छे ज नहीं कि जेने पवित्र ने आगळ माथा टेकवा जवुं पड़े। એટલા માટે મંદિરો भी नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। बाबा शू कहे छे? आ पुरानी दुनिया छे, जड़जड़ीभूत दुनिया छे, तो आ दुनिया ने अने आ दुनिया में जे जूनू शरीर मळेलुं छे एने पण भूलो। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे ख्याल खलास होने में देरी नहीं लगेंगी। हवे आ दुनियानो अंतिम समय छे। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो बाबा कहे छे हवे आ दुनिया ने खलास थवामां बहु समय नहीं लागे। यह पुरानी दुनिया धन, दौलत, माल, मिलकत सब गई की गई। हवे आ बधुं गयुं के गयुं, कई रहेवानुं नथी। हवे थोड़ी ज रोज बाकी है, मने हवे थोड़ाक ज दिवसों बाकी छे। दुनिया में थोड़ी ही किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया में थोड़ी कोई ने खबर छे कि हवे आ दुनियानो अंत थई जवानो। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास बैठे भी ना, कारण के ब्रह्मा कुमारी संस्था कहे छे कि हवे दुनियानो अंतिम समय छे, दुनियानो विनाश थवानो छे, परंतु दुनियावाळा जाणता नथी। એટલા માટે પહેલાં તો એ લોકો જ્યારે સાંભળે છે કે બ્રહ્માકુમારીવાળા કહે છે કે હવે વિનાશ થવાનો છે, વિનાશ થવાનો છે, તો એ લોકો જલ્દી વિશ્વાસ નથી કરતા। તો બાબા કહે છે પહેલાં એ વિશ્વાસ થવો જોઈએ ને કે હવે આ અંતિમ દુનિયા ખતમ થવાની છે। ભગવાન વાચ जब समझे तब बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहे पहला बात ने समझे त्यारे तो बुद्धि में बेससे, पछी प्रैक्टिकल धारण में आवशे। तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आखिर में तो एक ज बात है ना, बाबा शू कहे छे? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप और हम सब हैं ब्रदर्स। આપણા સૌના પિતા છે પરમાત્મા અને આપણે બધા છીએ ભાઈ ભાઈ। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होंगी ना, शरीर भी तो चाहिए। तो बाबा कहे छे अत्यारे आत्मा एटले नरकवासी नथी, शरीर सहित नरकनी अंदर छे। कारण के आत्मा तो एकली शुं करवानी,
अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इसमें ही तो मेहनत है। કયામાં મહેનત છે? આત્માભિમાની બનવામાં તો મહેનત છે। કોઈ માસી કા ઘર નહીં હે। આત્માભિમાની બની જવું તો બાબા કહે છે કોઈ માસીનું ઘર નથી। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। पहला ए पाक्को निश्चय करो कि ज्ञान आपवा वाळुं कोण छे? तो ज्ञानदाता तो निराकार परमपिता परमात्मा छे। त्यारे ए आत्मिक स्थितिनी अवस्था पाक्की थशे। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। शिव बाबा ने भी ज्ञान आपवा माटे तो शरीरनो आधार लेवो पड्यो। तो आपणे भी ज्ञान सांभळवा माटे शरीर जोईए। शरीर वगैर तो ज्ञान लई शकता नहीं। संस्कार अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। कारण के लड़ाई करता करता मृत्यु पाम्या होय तो ए संस्कार लईने जाय छे तो बीजा जन्ममां भी ए ज संस्कार इमर्ज थता होय छे। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा शू छे? निराकार छे, मनुष्य सृष्टिना बीज रूप छे, ए एमना संस्कार छे। तो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर तो पावन बनाएंगे। शिव बाबा पतित पावन ज्ञानना सागर निराकार सर्वोत्तम छे तो ए आवीने ज आपणे ज्ञान सागर बनावशे। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। बाबा शू कहे छे? मामेकम मने याद करो तो तमारा जन्म जन्मांतरना विकर्मों पाप कर्मों दग्ध थई जशे। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पद कुछ भी नहीं मिलेगा। पद कोई पण प्रकारનું नहीं મળે, સજાઓ ખાવી પડશે। तो बाबा ने याद करो तो विकर्म विनाश थई जशे। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। बाबा अपने सरल रस्तो बतावे छे। कहते हैं मन मना भव। कयो सहज रस्तो बतावे छे? मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। मन मना भव अक्षर गीतानी अंदर छे परंतु एने कोई समझी शकता नहीं। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा शू कहे छे? मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। આજે એક વાત પાકી, દરરોજ બાબા પાકી કરાવે છે પરંતુ આજે આપણે દ્રઢતાથી પાકી કરીએ કારણ કે આપણે આપણા વિકર્મોનો નાશ કરવો છે। તો બાબા કહે છે એ વાત પાકી કરો कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो કારણ કે હવે વાપીસ परमधाम જવાનું છે। याद को ही तो योग अग्नि कहा जाता है। योग अक्षर कॉमन है, गीता में भी है परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। बाबा कहे छे गीतानी अंदर भी योग अक्षरनो प्रयोग करेलो छे परंतु गीता ज्ञानदाता कृष्ण करी दीधा एटले योगनो भावार्थ ज उड़ी गयो छे। अंधियार माना ज्ञान जे साचू ज्ञान छे एनी उपर अंधकार फैलाई गयो छे। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। हवे आपणे समझावीए छे तो लोको शुं कहे छे? यह तुम्हारी कल्पना है। कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप है, बाप भी है,
टीचर भी हैं और वह हमको पढ़ाते हैं। पहला तो आ समझवानुं छे कि शिव बाबा अपनी आत्माना पिता छे, शिक्षक छे अने सद्गुरु छे अने आपणे ज्ञान आपी रह्या छे। यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। नवा लोकोने निश्चय आ वातनी अंदर बेसे तो पहला तो असंभव होय छे। एमने बाबाए गई काले कह्युं तो प्रेमथी समझाओ, समझावीने पालना भी आपवानी छे, त्यारे आ ज्ञानमा निश्चय बेसे। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं जो समझ जाते हैं। कोई पाकी आत्मा हशे सतयुग आदिनी तो ये जल्दी जल्दी समझी जाए छे। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। घणा एवा छे कि आवीने तरत बुद्धि में ज्ञान बेसी जाए, परमात्मा साथे जाणे कनेक्शन जोड़ाई गयुं होय एवी अनुभूति थती होय छे। अने कोई तो आवा इच्छता नहीं होता कि अहींया जशुं तो कोई जादू करी देशे, बाबाना बनावी देशे, पछी ए देखाशे, बीजुं कई देखाय नहीं। तो जरा पण बुद्धि में ज्ञान नहीं आवतुं। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो फैमिली हुई ना। आ एक परिवार छे, ईश्वरीय परिवार कह્યું છે। ब्रह्मा कुमारिया तो एक परिवार छे। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। आ प्रजापिता ब्रह्मानो एक परिवार छे, जेमां ब्रह्मा कुमार पण छे, ब्रह्मा कुमारी पण छे, बाप भी छे, दादा भी छे, माँ पण छे। तो ईश्वरीय परिवार छे। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा कहे छे कोई पूछे कि तमारू मुख्य लक्ष्य शू छे, तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो फैमिली हो गई। बार शू लखेलू छे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया छे तो आ एक परिवार छे, अने परिवार में डाडे से वर्षा मिलता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं। तो अहींया परमात्मा आव्या छे, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नवी सृष्टिनी रचना रची रह्या छे। तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं ना, शिव बाबा क्रिएटर छे तो शानी रचना करे छे? तो सतयुगी दुनिया की रचना करे छे। तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना। शिव बाबा स्वर्गीय दुनिया नो वारसो आपे छे, तो आ एक परिवार बन्यो। तो बाप, बच्चे, बच्चिया और दादा है। ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं। वह है रचयिता। ब्रह्मा बाप पण छे, शिव बाबा भी छे। तो ए छे शिव बाबा कौन छे? रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? शिव बाबा तो निराकार छे, तो बाळकोने वारसो कई रीते आपे? तो शू कर्युं? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है। शू समझावानुं छे? आ घर कोनुं छे? अपनी आत्माओना पितानुं घर छे। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबाए संस्था भी कही छे तो रुद्र ज्ञान यज्ञ पण कह्यो छे। तो हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। गीतानी अंदर शुं लखेलुं छे? मन मना भव, मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। बधाने शुं समझावानुं छे? बधाने कहो कि अहींया परमात्मा आवे छे, परमात्मा आवीने राजयोग शीखवाड़ी रह्या छे। आ एक परिवार छे
અને જેમ ગીતાની અંદર લખ્યું છે, મન મના ભવ મામેકમ યાદ કરો, તો અમે એક નિરાકાર परमात्मा ने याद करिए છીએ। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। भक्ति मार्गમાં ગાઈએ છે ને કે પરમાત્મા તમે જ્યારે આવશો તો અમે તમારી ઉપર બલિહાર જઈશું, વારી જઈશું, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। અને અમે આત્માઓ આ શરીરને છોડીને તમારી સાથે પરમધામ આવી જઈશું। તો બાપને વાયદો કરીએ છીએ, તો आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। તમારા બનીશું બી અને તમારી સાથે પરમધામ પણ જઈશું। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। हाँ, सगाई करी तो પછી શું થશે? સાજન સજનીને સાથે લઈ જશે ને પોતાના ઘરે। તો આપણી સગાઈ પરમાત્મા સાજન સાથે થઈ છે, તો પરમાત્મા સાજન એક દિવસ પોતાની સાથે ઘરે તો લઈ જવાના છે, તો साथ चले जाएंगे। यह शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा भी अपना साजन છે, દુઃખોથી મુક્ત કરાવીને સુખધામમાં, સુખની દુનિયામાં લઈ જશે, પરંતુ જેને જેવો પુરુષાર્થ કર્યો હશે એવી રાજાઈની પ્રાપ્તિ કરશે। જેટલું જ્ઞાન ધનને ધારણ કરશે એટલું ઊંચું પદ પ્રાપ્ત થશે। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। बाबा કહે છે નાની નાની કુમારીઓને બી શોખ થવો જોઈએ કે વિદ્વાન પંડિતો સાધુ સંતોને જઈને જ્ઞાન આપીએ। કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં શું કહ્યું છે? કુમારિયા દ્વારા તો મહારથીઓને બાણ लागवाना છે। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। बाबा કહે છે જે સર્વિસેબલ બાબાના બાળકો છે એમને કોઈ આરામથી સુવાનું નથી, કારણ કે બાબા કહે છે સેવા કરવાની છે, સેવા ઉપર ચેલેન્જ આપવાની છે અને બધાને જ્ઞાન આપવાની। સેવા કરો। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। बाबा કહે છે જે મહારથી બાળકો છે એમને તો સેવા ઉપર ચક્કર લગાવતા જ રહેવાનું છે, સુખથી સુવાની જરૂરત જ નથી। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। बाबा કહે છે અત્યારે નિમંત્રણ આપો, હાલ નહીં આવે તો પાછળથી તો આવશે, પરંતુ એમને સંદેશ તો પહોંચાડો। अभी नहीं तो पीछे से आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। बाबा કહે છે સાધુ સંત કોઈ પણ હોય એને જ્ઞાન આપીને જગાડવાની સેવા કરો, પરંતુ એ આત્માઓને જ્ઞાન આપવાવાળું કેવું હોવું જોઈએ? महारथी। जिनका बाप से योग नहीं प्यार नहीं वह तो जैसे खाली बादल है। જેનો પરમાત્મા સાથે યોગ નથી, પ્યાર નથી, ભલે જ્ઞાન છે પરંતુ બાબા કહે છે જાણે ખાલી બાદલ, खाली बुद्धि वाला। वह क्या करेंगे? यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी टोएंगे। जे ज्ञानी छे, जे बाबाने याद करे छे, जेनो परमात्मा साथे प्रेम छे, एमनी आगळ अनपढ़ शू करशे? भरी डोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ है। हरेकनी पोतानी तो खबर छे ने क्यां सुधी आपणे ज्ञानने धारण कर्युं छे। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं
तो वह बादल ही क्या काम का। बाबा के છે આકાશમાં વાદળ હોય, ભરેલા છે, કાળા કમ છે, પરંતુ વરસે જ નહીં તો એ વાદળને કોઈ કામ આવશે? તો બાબા કહે છે તમારી પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો ખજાનો ભરપૂર છે, પરંતુ તમે એ જ્ઞાનદાન કોઈને કરો જ નહીં तो बाबा कहते क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। बाबा કહે છે બાદલ ભરેલા છે પરંતુ વરસે જ નહીં તો એ કંઈ કામના નથી। એટલે બાબા કહે છે જ્ઞાન તો છે પરંતુ જ્ઞાનની સાથે સાથે સમજ પણ જોઈએ। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो उच्च पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो जहाँ हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बना दे। बाबा કહે છે જગ્યા માટે ગવર્મેન્ટને બી સમજાવો, મોટા મોટા શહેરોમાં જાઓ, ત્યાંના મુખ્ય જે ગવર્મેન્ટવાળા હોય સરકારી અધિકારી એમને સમજાવો કે અમને હોલ આપો આપના ત્યાંનો કે જ્યાં અમે લોકોને સમજાવી શકીએ, દેવતા બનાવી શકીએ। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी ही समझा सकेंगे। बाबा કહે છે જે ભાષણ જ નથી જાણતા એ થોડું સમજાવી શકશે। तो उच्च पद पा भी न सके। पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। ऊंचું पद कौन प्राप्त કરી શકશે? જે સેવા કરશે। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। बाबा કહે છે મોટા મોટા લોકોને લખો કે આ જ્ઞાન દ્વારા જ હરેક આત્માઓનું કલ્યાણ થશે। આ જ્ઞાન વગર તો ભારતનું કે આખી દુનિયાનું કલ્યાણ શક્ય જ નથી। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही तो यह पद पाया। बाबा કહે છે જ્ઞાન જ મુખ્ય છે ને, પહેલા 7 દિવસનું જ્ઞાન લેશું તો આગળ યોગ કરી શકીશું। તો બાબા કહે છે જ્ઞાન દ્વારા તો લક્ષ્મીનારાયણે આ પદ પ્રાપ્ત કર્યું। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। तो बाबा કહે છે यह नॉलेज मिलती है तो ये नॉलेज इस दुनिया के लिए नहीं है। तो આ જ્ઞાન આ દુનિયા માટે નથી, આવનારી દુનિયામાં ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરીએ એના માટે છે। तो बाबा કહે છે बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। स्कूल में विद्यार्थी शू समझता होय छे? आ परीक्षा पास करीशु तो आ अधिकारी बनीशु। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो, फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के। बाबा શું કહે છે તમે પણ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છો તો શાના માટે? ભવિષ્ય 21 જન્મો માટે પોતાનું ભાગ્ય બનાવવા માટે। तो वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। बाबा કહે છે એવું નથી કે સ્કૂલ કોલેજમાં જે ભણાવવામાં આવે છે એ મૂકી દેવાનું છે, એ બી અત્યારે જરૂરી છે આ જન્મના સુખો માટે, પરંતુ સાથે સાથે બાબા જે શિક્ષા આપે છે એ શિક્ષા બી જરૂરી છે। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आ ज्ञान बधा माटे जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते। जे समझावा माटे जे बाबाना बाळको छे, बाबा કહે છે બીજાને જ્ઞાન આપવા માટે હજુ એવી તત્પરતાથી સેવા માટે દોડતા નથી।
नौकरी की टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा કહે છે બંધન મુક્ત છો તો સેવામાં લગી જાઓ, નોકરીની ટોકરીમાં ક્યાં સુધી ફસ્યા રહેશો? श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं। बीच में माया गोटाला मार देती है। वच्चे वच्चे माया शू करे छे? गोटाड़ाओ लगावी दे छे। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करे। घणाने शौक होय छे कि सेवा करवा जईए, आम करीए तेम करीए, परंतु शुं थाय छे? ए नशो नथी होतो, नशो न चढ़तो, उमंग उत्साह नहीं आवतो कि लाओ आज एनी सेवा करी। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटका क्यों खाना चाहिए? बाबा કહે છે હવે જ્ઞાન બુદ્ધિમાં બેસી ગયું, જ્ઞાનને સમજતા થઈ ગયા તો પછી ગુટકા કેમ ખાઓ છો? ગુટકામાંના માયાવી દેહ અભિમાનમાં કેમ ચાલે જાઓ છો? कह सकते हैं कि हमको भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्यों को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है। बाबा કહે છે કે હવે સમજ આવી ગઈ કે દેવતા બનવાનું છે, સતયુગી દુનિયા આવવાની છે, હવે જલ્દીમાં જલ્દી આ કળિયુગી દુનિયાનો વિનાશ થઈ જવાનો છે। તો બાબા કહે છે કે હવે એમાં લાગી જાઓ, ભારતના ઉદ્ધાર કરવાની સેવામાં લાગી જાઓ। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसीलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है। बाबा ने भी आश्चर्य था कि आटलू समझ्या पछी नशो केम नहीं चढ़तो सेवानो। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। बाबा કહે છે એવા ઘણા લોકો છે કે જેને નોલેજનું ઘમંડ છે એટલા માટે ડિસસર્વિસ કરી દે છે। यह तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। हाँ, बाबा કહે છે ઘમંડમાં આવીને ડિસસર્વિસ કરે છે એવા મારા બાળકો છે, પરંતુ કોને કહીએ? હા, જે બાળક ડિસસર્વિસ કરે છે એને ખબર અને બાબાના બાળકને ખબર। तो बाबा कहते राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाते हैं। बाबा के छे एम लागे कहते हैं तो बहुत सरस रीते पुरुषार्थ करी रह्या छे, सेवा करी रह्या छे, पण एवो समय आवे कि जाने तरत ज क्या ग्रहचारी बेसी गई ए भी खबर नहीं पड़ती, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। આપણું કર્તવ્ય શું છે? नरकवासी ने स्वर्गवासी बनाओ, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। क्योंकि बाबा तो कोशिश करे से नशो चढ़ावानी परंतु हरेकनी अंदर चढ़तो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। शू करवानुं छे? बंधन मुक्त बने। एवं नहीं कि नौकरीनी टोकरीमां फसेला रहीए का तो घर परिवारना मोह लोभमां फसेला रहीए। मुक्त बनीने सेवा करो। जरूर छे परिवार माटे तो एटलो समय नौकरी तो करवानी छे, परंतु अगर नौकरीनी अंदर कमाणी लोको केटલું करता होय छे આગળ માટેની વિચારીને, આગળ ભેગું કરવાનું વિચારીને કરતા। તો બાબા કહે છે ભેગું કરવા નહીં, અત્યારે જરૂરી છે એટલું ભલે કમાઓ परंतु વધારે लोभ नहीं। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है।
रूहानी नशे में रहना। बाबा कहે છે ઘમંડમાં આવીને કાર્ય નહીં કરો, ઘમંડમાં આવીને જ્ઞાનદાન કરવા જશો તો જ્ઞાનદાન નહીં કરી શકો, रूहानी नशाમાં રહો। निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बनीने अवस्थाने पाक्की बनाओ, પછી દેહ સહિત દેહના સર્વ સંબંધોને ભૂલી એક બાબા સાથે સંગ જોડી દો। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। बाबा कहે છે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યર્થ સંકલ્પ કે પુરાના સંસ્કાર અગર હજુ સુધી છે तो एनु कारण छे देह अभिमान। अगर आत्मिक स्वरूप के संस्कार होंगे तो बाप समान होंगे। हजू सुधी देह अभिमान की स्थिति हसे तो पुराना संस्कार कार्यरत हसे, परंतु आत्मिक स्थिति में स्थित थई गया तो बाप समान बनवाना संस्कार हसे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार भी नेचुरल बन जाए। केवा संस्कार? विश्व कल्याणकारी, परम परोपकारी, रहमदिल, वरदाता बनवानुं छे। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते। बाबा कहે છે સંસ્કાર એવા હોવા જોઈએ કારણ કે સંસ્કારના આધારે આપણા સંકલ્પ, બોલ અને કર્મ થાય છે। તો બાબા કહે છે સંસ્કાર એક એવી ચાવી છે કે જે આપણા જીવનને स्वतः ચલાવે છે, फिर मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। सच्चे पुरुषार्थी की निशानी कई? आत्मिक स्थिति में स्थित रही पोताना शरीर द्वारा कर्म करो। अच्छा, ओम शांति।